السلام علیکم ناظرین، دکن ڈیری کے ساتھ حاضر ہوں میں ممتاز۔ ہم ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ایک نظر۔ عازمین حج کے لیے قرعہ اندازی کا عمل ہوا شروع۔ اس سال حیدرآباد سے 6500 عازمین حج سفر مقدس کے لیے ہوں گے روانہ۔ رقم جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 فروری مقرر۔ CAA کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا مقصد دستور کو بچانا ہے۔ صدر مجلس اسدالدین اویسی کا بیان، کہا مودی سرکار کے غلط فیصلے کے خلاف سب کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ کانگریس اور BJP کو ووٹ مانگنے کا حق نہیں، BJP مذہبی منافرت پھیلا رہی ہے، کانگریس نے کچھ نہیں کیا۔ KTR کا روڈ شو۔ TRS کا منشور ویب سائٹ سے غائب ہے۔ KCR نے عوام کو دھوکہ دے کر اقتدار حاصل کیا ہے، سابق PCC صدر پونالا لکشمیا نے لگایا الزام۔ تلنگانہ بھر میں اتوار 19 جنوری کو پلس پولیو پروگرام کے انعقاد کے لیے تمام تیاریاں ہوئی مکمل۔ ریاست کے 38 لاکھ سے زائد بچوں کو پلائی جائے گی پولیو خوراک۔ آئیے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ حج ہاؤس میں عازمین حج کے لیے قرعہ اندازی کا عمل شروع ہوا۔ اس سال حج کمیٹی کو 10,752 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 10,280 عام زمرے کی درخواستیں ہیں۔ تاحال 3,869 نشستوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ عازمین حج کے لیے 4,341 کوٹا مقرر کیا گیا ہے، جن میں سے 464 نشستیں زائد 70 سال کے عازمین کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اس سال حیدرآباد سے 6,504 عازمین حج سفر مقدس کے لیے روانہ ہوں گے، جس کے لیے فی الحال فی عازمین حج کو 81,000 روپے کی قسط 15 فروری تک جمع کروانی ہوں گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال حج کمیٹی کو 13,368 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ہم تمام کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ کاماریٹی میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج ملک کو جو ماحول ہے، ہر شہر اور ہر ریاست میں احتجاج ہو رہا ہے اور یہ احتجاج دستور کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ملک کی 70 سالہ تاریخ میں مودی حکومت نے ایسے قانون کو لایا ہے جسے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ اس قانون سے مسلمانوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ قانون ملک کے دستور اور اسے ہدف بنانے والوں کے خلاف ہے۔ دوسری بات، وزیر اعظم بولتے رام لیلا گراؤنڈ میں وزیر اعظم اپنے منفرد سٹائل میں بولے 130 کروڑ جنتا کو جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جھوٹ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو قانون کے تحت NPR ہوگا وہ 2003 کے رولز ہیں۔ NPR NRC کی ہے، NPR ہوگا تو NRC ہوگا، اس کے رولز یہ بتا رہے ہیں۔ اور NPR کیا ہوگا کہ کاماریڈی میں وارڈ نمبر 5 میں آئیں گے، آ کر ہمارے مجلس کے صدر پہ پوچھیں گے آپ کا نام، والد والدہ کا نام، تاریخ پیدائش کیا ہے، اس کے بعد آدھار کارڈ ہے بتاؤ، پاسپورٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، پک کارڈ ہے، جمع کر کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کاماریڈی کی بلدیہ کا ایک سیکشن آفیسر بیٹھ کے بولے گا نہیں جعفر ڈاؤٹ فل سٹیزن۔ کیوں ڈاؤٹ فل؟ مشکوک لکھے گا، کس قانون میں کیا اس کے گائیڈ لائن ہے، کچھ نہیں ہے، اس کی مرضی، اس کا اختیار۔ اس کے بعد ان کو بولیں گے اب آپ بھارت کی شہریت ثابت کرو۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے بے عزتی کی بات ہوگی کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنی شہریت کو ثابت کرو۔ پھر اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ کا سلسلہ شروع، لاؤ برتھ سرٹیفکیٹ لاؤ۔ یہ دنیا میں ایسا کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا جس طرح کا یہاں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ CAA کے خلاف ہم کو احتجاج کرنا ہے۔ الحمدللہ مشترکہ مجلس عمل کے تحت احتجاج ہوا حیدرآباد میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام لوگ ترنگا ریلی میں آئے، اور جب ترنگا ریلی نکلی جمعے کے دن، پچھلے جمعے کو، تو اس کے بعد کانگریس BJP والے اور پریشان، ارے تمہارے ہاتھ میں ترنگا آ گیا۔ بولا کیوں پاشا، تکلیف کیوں ہوئی؟ نہیں آپ کے ہاتھ میں ترنگا کیسے؟ بولا کیوں؟
नहीं डर गए क्या या अपनी वफादारी दिखा रहे? अरे देखो भाई, हम किससे भी नहीं डरते सिवाय जमीन और आसमान के खालिक के, नहीं डरते। हो सकता कि थोड़ा बहुत इनको देख के थोड़ा वो था, मगर अंदर दिल बोलता इन्हें क्या कर सकता, खाली जान ही ले सकता ना लिख। उधर आंध्र प्रदेश के शहर कड़पा में तमाम मसलक के उलमा की ज़ेर निगरानी में NRC, CAA और NPR के खिलाफ एहतजाजी जलसा आम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें तमाम मसलक के उलमा ने एक स्टेज पर खड़े होकर मोदी सरकार के कानून की मुखालिफत की। उलमा आइम्मा की क़यादत में कड़पा शहर के ईदगाह मैदान में मुनक़्क़द प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में अवाम ने हिस्सा लेते हुए CAA और NRC के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इस प्रोग्राम में पोस्टल कार्ड के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को पैगाम पहुंचाने का इंतज़ाम भी किया गया और कई लोगों को पोस्ट कार्ड पर अपना नाम पता दर्ज करते हुए CAA को वापस लेने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट कार्ड रवाना किया। 19 लाख लोग से भेजा है, काला अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरे की वजह से वह शख्स में है कांप रहा, अकेला मजहब था, कोई और मजहब नहीं, बाकी तो सब पुराने हैं। तो गुलामों की करार दिया जा रहा है, ये कैसा जुल्म हो रहा है, ये कैसा लोगों पर सितम ढाया जा रहा है। ए हिंदुस्तान के लोगों, अगर आप भी नहीं चाहोगे, याद रखो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों के अंदर। और हम मुसलमानों से पूछा जाता है क्या मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के अंदर अता फरमाई है, आपस में भाईचारगी का साथ किस तरीके से एक दूसरे का दे रहे हैं। लिहाजा हमें भी ये चाहिए कि हम इस अजीम शान इजलास के जरिए से, इस अजीम शान एहतिजाज के जरिए से ये अपना एहतिजाज दर्ज कराना चाहते हैं। और ये एहतिजाज बस नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बल्कि मुस्तकिल इस भारत को दोबारा ऐसे जालिमों के हाथ से आजाद कराने तक ये एहतिजाज चलता रहेगा। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस एहतजाज को इंशाल्लाह जारी रखेंगे जब तक कि हुकूमत अपने इन क़वानीन को वापस ले ले और सबके साथ एक साथ सलूक करे। अब इसके बाद महबूबनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मुख्तलिफ बल्दी हल्कों का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वाहिद जमात है जो अवाम के दरमियान रहकर अवामी मसाइल को हल करती है। उन्होंने मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के ज़रिए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करने की अपील की है। मजलिस बल्दिया महबूबनगर के इंतखाबात के ज़िमन में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज यहाँ तमाम वार्डों में दौरा किया, पैदल दौरा किया गया। डोर टू डोर वोटर से मुलाकात करके मजलिस के हक़ में वोट इस्तेमाल करने की अपील की गई। और ये दौरों के अख्तिताम पर यहाँ पर इंतखाबी जलसा भी है खलील चौक में, वो जलसा भी होगा और यहाँ के मुकामी कायदीन भी मुखातिब करेंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए महबूबनगर के वोटर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 22 तारीख को पतंग के निशान पर मोहर लगा के मजलिस उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। याद रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम मसाइल को हल करवाती है असम्बली में, पार्लियामेंट में, खुसूसन तेलंगाना असम्बली में। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कई मसाइल 2014 से आज तक उनकी नुमाइंदगी पर तकरीबन 34 GOs जारी हुए। जगतियाल में गुज़िश्ता रोज़ बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लेते हुए मजलिस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को तमाम राय दहिंदाओं को चाहिए कि वो BJP और सियाह कानून के खिलाफ अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए पतंग के निशान पर मुहर लगाएं। उन्होंने कहा कि जगतियाल में मजलिस की जानिब से 6 बल्दी वार्ड्स पर उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है और उन 6 उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर इलाके के अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।
کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام امیدواروں کے حق میں آپ اپنا قیمتی ووٹ دیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ ہے، اور آپ کو اس مرتبہ بیلٹ پیپر کے اوپر جہاں پر پتنگ کا نشان آپ کو دکھے گا، میری آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پر آپ مہر لگا کر اپنی جماعت کو، اپنے اتحاد کو، اپنے سیاسی شعور کو کامیاب کریے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں شروعات میں ہی آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جگتیال میں جو مسلم شادی خانے کا مسئلہ ہے، جو میرے خیال سے اس کا ایک عظیم الشان ریکارڈ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے 30 سال لگے، تاج محل کو اتنا ٹائم لگا ہوگا، مسلم شادی خانہ اتنا ٹائم لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہر 6 مہینے میں 1-2-10 اینٹ لگا کے۔ ادھر بخار آباد میں مجلسی امیدواروں کی تائید میں مجلس کے رکن اسمبلی معظم خان کی زیر نگرانی میں انتخابی ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مجلسی امیدوار شہناز بیگم کے علاوہ دیگر قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر معظم خان کے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کے انتخابی نشان پتنگ کو ووٹ دے کر مجلسی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ ہم پہلے ہمارے صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پھر ہمارے کو یہ موقع دے چکے ہیں، ہم ووٹر کے پاس جا کے بول چکے ہیں کہ الحمدللہ لاسٹ ٹائم بھی ہمارے کو بہت اچھے میجارٹی سے لا کے آپ ہمارے ساتھداری دیے اور تھوڑا محنت کر کے ہمارے کامیاب کر رہی ہے بول کے ہم دعا کام کرے۔ 1-4 بوران گر چکے ہوئے، روڈ کا کام گرا ہوا ہے صدر صاحب کی طرف سے، ہمارے MIM پارٹی کی طرف سے ابھی بھی کمیٹی حال ہے 7 بوران گر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ابھی بھی ہم کامیاب ہوئے تو جو کچھ بھی کام ہے یہ وارڈ کے جو 32 وارڈ کے جو پینڈنگ ہے، اللہ چاہے تو ہم پورے کامیاب کریں گے۔ اور سنگاریڈی میں بلدی انتخابات کے پیش نظر مجلس کی جانب سے زبردست روڈ شو کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں رکن پارلیمنٹ اورنگ آباد امتیاز جلیل، رکن اسمبلی کاروان و انچارج سنگاریڈی کوثر محی الدین، رکن بلدیہ شاہ علی بنڈا مصطفیٰ علی مظفر، کارپوریٹر نانل نگر نصیر الدین اور مجلسی انچارج ضلع سنگاریڈی منظور علی خان نے حصہ لیا۔ مجلس کی انتخابی مہم کا آغاز درگاہ حضرت شیخ فتح خان کی درگاہ کی زیارت کے بعد کیا گیا۔ نوجوانان سنگاریڈی نے بائک ریلی نکالتے ہوئے رحمت پورہ، عثمان پورہ، نال صاحب گڈھا، اوپر بازار کے علاوہ دوسرے وارڈز کا احاطہ کیا۔ امتیاز علی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ مجلس کے 12 امیدواروں کے حق میں دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھ مضبوط کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی حالات کے پیش نظر رکھتے ہوئے مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس ہی ملک کی واحد جماعت ہے جو مسلم، دلت اور دوسرے طبقات کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ مقامی افراد نے جگہ جگہ مجلسی قائدین کا استقبال کیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے بھی مقامی افراد سے ملاقات کر کے عوام سے خطاب کیا۔ عادل آباد میں بلدی انتخابات کی انتخابی مہم زوروں سے جاری ہے۔ عادل آباد میں مجلس امیدواروں کی تائید میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، صدر ٹاؤن مجلس و سابق نائب صدر بلدیہ محمد فاروق احمد کے علاوہ بلدی وارڈ نمبر 1، 2، 22، 23، 26 اور 11 وارڈ نمبر کے امیدواروں کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر مجلسی قائدین نے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور مجلسی امیدواروں کو ووٹ دے کر انہیں
भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने आदिलाबाद में बल्दी वार्ड्स की तरक्की और अवामी मसाइल के यकसुई के लिए मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाबी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मजलिस ही वो वाहिद जमात है जो अक़लियतों और दलितों के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर आज मेरा जो दौरा चल रहा है, पैदल दौरा, वो वार्ड नंबर 22 और 23 का दौरा चल रहा है। 23 से जनाब फारूक साहब जो यहाँ आदिलाबाद के सदर है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, 22 से उनकी अहलिया कंटेस्ट कर रही है। तो आज जो अवाम हमारे साथ है, मैं अवाम से ख़ास दरख्वास्त करता हूँ 22 तारीख को आप अपना एक कीमती वोट पतंग के निशान पे दीजिए। पतंग मजलिस का निशान है और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आदिलाबाद के अंदर 17 उम्मीदवार मजलिस के ठहरे हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम के तमाम 17 अल्लाह ने चाहा तो कामयाब होंगे। अब जो फिजा चल रही है, ख़ास तौर से 16 तारीख को असदुद्दीन अवैसी साहब जब आदिलाबाद में आए थे, उसके बाद में अवाम ने ये महसूस किया मौजूदा हालात के हिसाब से जो हिंदुस्तान का जो आज माहौल चल रहा है, उस माहौल के हिसाब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद से जीतना बे मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, कोई भी ज़ात को हम नहीं देखते। हम यही सोचते हैं इंसानियत के नाते हम आगे बढ़ के काम करते हैं। तो मेरी टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि अपोजिशन हमको शिकस्त देने का दावा कर रही है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सिलसिला में इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो के मौके पर अम्बेडकर चौराहे पर आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिलसिला में 39 वार्ड्स के मजमिला 4 पर टीआरएस बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। दीगर वार्ड्स पर टीआरएस को कामयाबी दिलाने की जिम्मेदारी आवाम की है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के अलावा आवाम से वोट मांगने का हक़ किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर इख्तिदार में म्यूनसिपलिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया है। बीजेपी के दावे बड़े हैं, काम कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क में मजहबी सियासत कर रही है जिसको तेलंगाना की आवाम कभी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल में जो तरक्की नहीं हुई है वो टीआरएस हुकूमत ने कर दिखाया है। केटीआर ने कहा कि शहरी इलाकों में 75 गज से ज़्यादा अराजी पर घर तामीर करने के लिए 21 दिन के अंदर मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कानून पर सख्ती से अमल किया जाएगा, उससे अहदेदारों को जवाबदेह बनाने के साथ आवाम को सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस और बीजेपी जब वोट मांगने आएँ तो सवाल करें कि तेलंगाना के लिए क्या किया है। इस रोड शो में आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मुखराबाद ज़िला परगी मंडल में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार तबस्सुम ने एक नंबर वार्ड में इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाते हुए घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने एक नंबर वार्ड की आवाम से मुलाकात करते हुए टीआरएस पार्टी के निशान के कार को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक मरतबा उन्हें खिदमत करने का मौका देने की आवाम से अपील की और कहा कि उनको कामयाब बनाने पर एक नंबर वार्ड में आवाम को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। निज़ामाबाद के बल्दी वार्ड 59 में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार सनाउल्लाह ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया है। इस मौके पर उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और टीआरएस पार्टी के हक़ में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस हुकूमत एक एनआरसी और सीएए के ख़िलाफ़ है और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और केटीआर ने एनआरसी से मुतल्लिक़ बयान देते हुए आवाम की बेचैनी को दूर कर दिया है। सबूत ये है कि केटीआर साहब 2 रोज़ पहले जो बात करे हैं कि हम लोग हमारी हुकूमत में
ये नाफिज नहीं होने देंगे ये कानून को। और महमूद अली साहब जो डिप्टी हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो भी जो है सो आशा पेंशन्स की बराबर तरफ से नहीं पहुंचाई गई उनके पास। शादी मुबारक स्कीम के टाइम पे जो है ना बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मेरा ऑफिस डिवीज़न नंबर 59 के अंदर होगा। मैं क्योंकि बाशिंदा हूं 59 का। उधर जोगुलांबा गढ़वाल टाउन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इसहाक खान ने बल्दी वार्ड नंबर 11 में इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया है। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए एक और मरतबा उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 11 नंबर की आवाम ने 2014 में उन्हें कामयाब बनाते हुए खिदमत करने का मौका दिया था, जिसके बाइस उन्हें अपने वार्ड में कई तरक्याती कामों को रुबा अमल लाया है। उनका कहना है कि अगर 11 नंबर वार्ड की आवाम उन्हें एक और मरतबा खिदमत का मौका देती है तो वो ज़ेर-ए-इत्तिबा तमाम तरक्याती कामों को पूरा करेंगे और अवामी मसाइल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। అలా గెలుపు మరవలేనిది। వాళ్ళు గెలిపించినట్లనే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నేను పూర్తి చేశాను। ముఖ్యంగా మా వార్డులో మోమిన్ మేళ ఇక్కడ మేజర్గా మైనార్టీస్ నివసిస్తారు। మైనార్టీస్ కావాల్సిన ఏ అవసరం ఏం అడిగినా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అప్పటికప్పుడు ఫోన్ చేసినా కానీ నా ఇంటికి కూడా రాకుండా ఫోన్ చేసి కూడా స్పందించాను। ఇప్పుడు దాదాపు మా వార్డులో అప్పుడు 30 లక్షల అభివృద్ధి పనులు చేశాను। రోడ్ సీసీ రోడ్। वखाराबाद जिला कोडंगल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस इंतखाबी मुहिम में रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए TRS पार्टी को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि KTR ने गुज़िश्ता इंतखाबात में कोडंगल को गोद लेने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक कोडंगल में किसी भी तरह के तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कोडंगल में सिर्फ मेरी तरफ ही तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कोडंगल बल्दिया में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने पर मरकजी हुकूमत के फंड के जरिए तरक्याती कामों को पूरा करने का वादा किया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि KTR की बदउनवानी के खिलाफ जामिया तहकीकात के अहकाम जारी करें। वज़ीर आला को खुला मकतूब रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि GO 111 हदूद में फर्जी नाम से राजमहल तामीर किया गया है। रियल इस्टेट माफिया के साथ हाथ मिलाकर GO 111 का जायज़ा लेने की बात कर रहे हैं। बाज़ देहातियों को मुस्तशना रखने की साजिश की जा रही है। KTR 2014 में 8 करोड़ के असासे के मालिक थे। 2018 में 41 करोड़ के इजाफे के पीछे क्या राज है? उन्होंने कहा कि TRS के अतियात में 188 करोड़ का इजाफा किस तरह हुआ है, उसके पीछे क्या राज है, उसका खुलासा होना चाहिए। रियासत 3 लाख करोड़ की मखरूज है, लेकिन आपका ख़ानदान दौलतमंद कैसे है? गच्ची बावली कोकापेट की अराजी किस तरह KTR की हुई? रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर तहकीकात का हुक्म नहीं देंगे तो अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द तमाम बदउनवानी पर मबनी किताबचा जारी करेंगे। और जगतियाल में रियासती वजीर कोपला आशेश्वर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जगतियाल बल्दी इंतखाबात को लेकर कांग्रेस और BJP को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जगतियाल में TRS पार्टी की कामयाबी के जरिए जगतियाल बल्दिया की मनसूबाबंद तरीके से तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 40 साल दौर इख्तिदार में जगतियाल की तरक्की के लिए किसी भी तरह की मनसूबाबंदी और मुस्तकिल लाए अमल से काम नहीं लिया, जिसकी वजह से जगतियाल की तरक्की मांद पड़ी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने अपने दौर इख्तिदार में जगतियाल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था, लेकिन TRS हुकूमत जगतियाल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP के रुकन पार्लियामेंट ने झूठे वादे और साजिश के तहत इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और 9 माह का अरसा गुजरने के बाद बावजूद भी किसानों से किए वादों को पूरा नहीं किया।
वखाराबाद जिला टांडूर में टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए टांडूर बल्दी इंतखाबात में मजलिस के साथ मफाहिमत किए जाने की खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तेलुगु चैनल और सोशल मीडिया पर मजलिस के साथ मफाहिमत करने और चेयरमैन के ओहदे को मजलिस को सौंपने के लिए मुआहदा करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टांडूर में 1 या 2 सीट पर भी कामयाबी हासिल न करने वाले जमातों को चेयरमैन की सीट की सलाह दी जा सकती है। महबूब नगर बल्दिया इंतखाबात के लिए रियासती वजीर श्रीनिवास गौर ने टीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि महबूब नगर की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी की जानिब से इंतखाबी मंशूर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 300 किलोमीटर तवील ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज लाइन की तनसीब अमल में लाने का ऐलान किया। उसके अलावा 2000 मुस्तहक़ ख़ानदानों में डबल बेडरूम मकानात तामीर करते हुए दिए जाएंगे। उसके अलावा हैदराबाद महबूब नगर डबल रेलवे लाइन के कामों को 6 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा और शहर में 200 करोड़ की लागत से शहर की शाहराहों को और फुटपाथ की तामीर और चौराहों को असरी व खूबसूरत बनाया जाएगा। उसके अलावा महबूब नगर में 150 करोड़ की लागत से IT टावर तामीर किया जाएगा और उसके ज़रिए बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाएगा। और उधर वखाराबाद में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र राय दहिंदों में शऊर बेदारी के लिए 2K रन पैदल रैली का इनेकाद अमल में लाया गया है। ज़िला कलेक्टर आयशा मसरत खानम ने इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली RDO के दफ्तर से निकलकर मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए तेलुगु मीडियम स्कूल पहुंची। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर आयशा मसरत खानम ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी मुल्क में वोट डालना हमारा हक़ है। उन्होंने तमाम राय दहिंदों को हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए शफ़ाफ हुक्मरानी को यकीनी बनाने का मशवरा दिया है। भैंसा में फिर वाराना कशीदगी के बाद हालात मामूल पर आ गए हैं, जिसके बायस कर्फ्यू मुकम्मल तौर पर हटा लिया गया है और इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई हैं। शहर में पुरअमन हालात की बहाली के साथ ही बल्दिया इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। मजलिसी उम्मीदवारों ने अपने अपने बल्दी हलकों में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ अमल में लाते हुए मजलिस के निशान पतंग को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। इस दौरान मजलिस कायदीन ने फिरकावाराना फसादात में ज़ख्मी अफराद से मुलाकात करते हुए उनसे इज़हार यकानगत किया और पुलिस की तरफ से गिरफ्तार नौजवानों को फ़ौरन रिहा करने का मुतालबा किया। इस दौरान सदर मजलिस भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद ने फिरकावाराना तशद्दुद की वजह से नक़ल मकानी करने वाले अफराद को फ़ौरन वापस होने की अपील की है ताकि बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए फिरका परस्त जमात को शिकस्त दी जा सके। है उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है और यहाँ की पब्लिक को हम जो 15 साल से हम जो कंटिन्यू चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन के हम यहाँ पर खिदमत करे हैं, उस तरफ से उसी के वजह से हमको यहाँ पे अपना आवाम हमारे को बहुत चाहती है जमात को, और जमात का अब की बार भी हम डिफिनेट अल्लाह पे। रियासत भर में कल इतवार 19 जनवरी को पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक़्क़द होने वाला है, जिसमें रियासत के 38 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस सिलसिले में जो गुलामबाग गदवाल मुस्तखर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ज़ेर निगरानी में स्कूली बच्चों को लेकर एक रैली निकाली गई और 19 जनवरी को मुनक़्क़द होने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कल बरोज़ इतवार को 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो के 2 खतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने नौनिहालों को बीमारियों से बचाने के लिए पल्स पोलियो का इस्तेमाल करें। यह पल्स पोलियो बस स्टैंड, ग्राम पंचायत ऑफिस, सरकारी दवाखाने में आशा वर्कर्स के हाथों में अमल में लाया जाएगा। इसी के साथ ही दकनरी ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।